Hello class 4th, myself Parthiva Shish from Childcare International School. So in today's video we'll discuss about our SS chapter number 7, the natural wealth of India. So in this video, I'll tell you what are the natural wealths of India. So we can say the natural resources are the valuable things which get from the earth. It can be anything that comes from nature. Okay, the crops that we grow from the soil, the clay that we use to make pots and all, the dishes are there some resources also. There are many natural gifts that are mankind also. मतलब कि जो भी चीज़ हमें nature से मिलता है, that is known as natural वेल्थ. फॉर एग्जाम्पल जो सॉइल हमें मिलता है, जो क्ले हमें मिलता है जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सो बेसिकली दीज आर द नेचुरल वेल्थ जो हमें इंडिया से मिलता है. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सॉइल विच वी गेट फ्रॉम एज अ नेचुरल वेल्थ फ्रॉम इंडिया. सो सॉइल एक टॉपमोस्ट soil is the topmost layer of earth's surface. It's formed by breaking up of large rocks into very small pieces of sand and silt. So basically soil form कैसे होता है? Soil basically जो uppermost layer है land का वो होता है. Okay, earth surface का जो uppermost layer होता है that is known as soil. And how are they formed? जब जो बड़े-बड़े stones होते हैं, बड़े-बड़े rocks होते हैं, when they broke into smaller pieces, जब वो छोटे-छोटे pipes में टूट जाते हैं, तो they form into sand and silt. And then they carry to different places, like wind blows away and they carry it from one place to another, and either can be carried by wind or water, and they get settled into one places, and those are they form different types of soils. Kuch forms, there are basically 4 types of soils: alluvial soil, black soil, red soil, and laterite soil. Okay, so coming to the first one, that is alluvial soil. So alluvial soil is the most important and widespread category of soil. ये सबसे important category of soil है. Entire जो northern plain of India का are made up of alluvial soil. Okay, this soil is formed by depositions brought by rivers. So जो rivers से जो soil जब rivers में जो stone, sand, silt जो रहता है वो flow होके आता है, and that get into one places, उसको हम बोलते हैं alluvial soil, and it is very good for agriculture. And basically हम rice, wheat, jute, sugarcane, maize, cotton, ये अलग अलग crops हम यहाँ पे grow कर सकते हैं. The next one is black soil. So black soil is formed by breaking up of volcanic lava rock. So black soil हमारा generate होता है basically हमारे lava rocks के कारण. जो soil है वो black color में होता है, और basically ये बहुत ज़्यादा इस soil में बहुत ज़्यादा iron present होता है. That is good for nature. The next one is red soil. Red soil जो हमारा form होता है वो breakdown होता है जो volcanic rocks है उनके breakdown से हमारा form हुआ था red soil. एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारा आयरन ऑक्साइड. एंड ये हमारा कॉटन, वीट, ऑयल सीड्स, राइस, मिलेट्स, कॉटन, इन सब में रेड सॉइल यूज होता है. द नेक्स्ट वन इज लैटराइट सॉइल. लैटराइट सॉइल जो होता था ये फाउंड हुआ था हमारा हिल स्लोप्स में, जो कि टॉप ऑफ द सॉइल है, जो कि कैरिड हुआ था हैवी रेनफॉल के कारण. These are basically laterite soil. एंड हम यहाँ पे क्या क्या ग्रो कर सकते हैं? कोकोनट हो गया, कैशू नट हो गया, ये सारे रबर ट्रीज हो गए, ये हम laterite soil में ग्रो कर सकते हैं. Now what is soil erosion and soil conversion? Soil erosion होता है जब आप ट्रीज को लार्ज नंबर में कट डाउन करते हो, ठीक है, तो there is nothing, if tree is not there, तो there is nothing that can hold soil to it, राइट. तो जब सॉइल होल्ड नहीं होता है और बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में ट्रीज कट करते हो, तो विंड के कारण जो सॉइल रहता है वो इरोड हो जाता है, वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेस चला जाता है. तो जैसे जैसे वहाँ से सॉइल हटते जाता है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन. मतलब उस सॉइल की फर्टिलिटी अब खत्म हो रही है. सॉइल कन्वर्जन क्या होता है? प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम सॉइल. जब हम सॉइल इरोजन से कुछ फीचर्स निकालेंगे कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सके, तो हम उसको बोलते हैं सॉइल कन्वर्जन. ओके, वी नीड टू प्रोटेक्ट द सॉइल बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. हमको उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा, दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ. ओके, सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस होता है बेसिकली जो सॉइल टॉप सॉइल रहता है वो वॉश हो जाता है विंड से और रेन से. जो टॉप सॉइल है वो उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जिससे हमारा प्लांट ग्रोथ भी सर्वाइव होता है. द नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट जो रहता है वो बहुत एसेंशियल रहता है हमारा सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्लांट कवर है, दैट आर फाउंड ऑन ग्रोइंग इट्स ओन वास्ट एरिया. जो प्लांट्स हैं हमारे, जो फॉरेस्ट है वो कवर करते हैं लार्ज एरिया दैट आर नोन एज. पहला
हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो वी कैन से कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट रिमेन्स एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर्स, मीन्स उसके जो लीव्स होते हैं वो हमेशा थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज डेसिडियस फॉरेस्ट। जो भी फॉरेस्ट जहाँ पे हमारा ये फॉरेस्ट हमारा छोटा नागपुर प्लेटू में है, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो मॉडरेट होता है, ओके, नो ज़्यादा ना कम। तो यहाँ के जो डेसिडियस फॉरेस्ट वी कैन से कि द ट्रीज शेड लीव्स इन समर, इनके जो लीव्स है वो समर में शेड होते हैं। सो बेसिकली हम इसको इसलिए डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज स्क्रब फॉरेस्ट। स्क्रब फॉरेस्ट जो बेसिकली ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ की जो टेम्परेचर रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है बट रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर होता है, तो दैट आर स्क्रब फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जो कि हिमालय रीजन में पाया जाता है, दोज आर नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट। द ट्रीज विच आर फाउंड इन दीज एरियाज आर टॉल एंड इन कॉनिकल शेप। सो यहाँ के जो ट्रीज रहते हैं माउंटेन एरियाज के वो कोन शेप के रहते हैं कि जब उसमें आइस गिरे तो इट स्लोप्स डाउन और जो हमारा लीव्स है वो डैमेज ना हो। द नेक्स्ट वन इज टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट जो हमारे रहते हैं वो रिवर डेल्टा रीजन के साइड पाए जाते हैं एंड जो सपोर्ट करते हैं लाइफ ऑफ, जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया, जो ट्रीज यहाँ पे ग्रो होते हैं वो बेसिकली टाइडल रूट्स के कारण, वाटर ब्रीदिंग के कारण ही ग्रो अप हो पाते हैं। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर हम फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को सेव करना है तो फॉरेस्ट को सेव करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज फॉरेस्ट आर द बेसिक होम ऑफ animals, okay, so to conserve if we have to conserve wild animals, conserve wildlife, so we have to protect our forest to becoming an extinct, so ताकि हमारे lizard, elephants, rhinoceros ये जो हमारे हैं they could live in forest because they specifically forest is a home of animals. Now what are the importance of forest? क्या क्या importance है forest की? पहला, ये हमें timber provide करता है। timber मतलब लकड़ियाँ जिससे हम wooden furniture, विंडोज, डोर्स, होम ये सब बिल्ड आउट करते हैं, ठीक है। सो टिम्बर प्रोवाइड करता है, फ्रूट प्रोवाइड करता है, वुड मेडिसिन ये सब प्रोवाइड करता है। जो ट्रीज रहते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं एज मच कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि ऑक्सीजन वो रिलीज मतलब देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, तो ये साइकिल प्रोड्यूस होता है जो कि फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट से हमें रेनफॉल कॉज होता है और ये हमारे क्लाइमेट को भी बहुत ज़्यादा कूल रखता है। दे आर मेजर सोर्स ऑफ वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर, ओके, और यहाँ पे हमारे मेजर सोर्स ऑफ ट्रीज से हम क्या जनरेट कर सकते हैं? पेपर भी जनरेट कर सकते हैं एंड दे प्रोवाइड शेल्टर एंड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। सो बेसिकली फॉरेस्ट होम है वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी। सो बेसिकली दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर दैट इज नेचुरल वेल्थ ऑफ इंडिया। आई होप So students, this is the end and see you guys in the next video. Till then, stay home, stay safe. I hope I have made all the points clear. Please go through the chapter. Till then, bye bye.